formation tendency of these lanthanides. Alright, so complex formation tendency of these lanthanides. So in case of D block elements, we have seen that D block elements, they form maximum complexes. Alright, so to form complexes, we know that in complex there are two parts. One metal, alright, metal is there, and another part is ligand. So ligand, it donates electron pairs to that metal. Alright, so in lanthanides, or we can say that for formation of complex, there should be maximum charge, alright, and size, the size of that metal, it should be smaller. Alright, so to form complex, charge should be high, and size of that element or ion, it should be small. And now we have seen that from moving from lanthanum to lutetium, size decreases. Alright, and all these elements, they show high charge. It means with oxidation state, these elements, they are present in +3 oxidation state. So all these 14 elements from, or 15 elements, we can say, from lanthanum to lutetium, they have this +3 charge. Alright, so charge is high, definitely charge is high. But if you consider size, so to form complex, the size of that ion, it should be small. So in case of lanthanides, from lanthanum to lutetium, size decreases. Alright, size decreases. So we can say that this lutetium, the element which is present, the last element which is present in this lanthanide series, will form complex more easily. Alright, so from lanthanum to lutetium, the tendency to form complex is increases. Alright, it increases because the size decreases from lanthanum to lutetium. And again, we know that in case of lanthanides, lanthanide, they exist in +2 charge also, +2 oxidation state, alright, or +4 oxidation state also. So we can write here Ln2+, then Ln3+, and Ln4+. So from moving from this Ln2+ to Ln4+, charge is more. In which case? In this case, alright, last case, because it is 4+, charge is more. So if charge, if just now we have seen that if charge is high for this lanthanide, the tendency to form complex is more. So Ln4+, it form more easily complex than Ln3+, and these Ln3+ elements, they form a complex faster than these Ln2+. Alright, so this was the general complex formation tendency of these elements, and it is observed that these lanthanides, or we can say that for F block elements, they generally show lesser tendency to form complex than D block elements. Alright, because
already we have seen that d block elements, in case of d block elements, the radii of this of that d block elements is again smaller than these lanthanides. All right, and if we want to add some points regarding this complex formation tendency, so generally these elements lanthanides, they generally don't form complexes with pi donor ligands. They do not form complex with which ligands? Pi donor ligands. For example, if you remember which ligands are, we call it as pi donor ligand, like carbonyl. Alright, like this type of ligands we call they as pi donor ligands. So they lanthanides generally don't form complexes with these type of ligands. So if you want to give some reason for this, in case of lanthanides, the electrons are generally present in 4f shell, alright, and that 4f shell is inner to that 6s and 5d also. So it is not easily accept or remove that electrons, alright. So बैक बॉन्डिंग का अगर नाम आपने सुना होगा, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल से लिगेंड में ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो 4f ऑर्बिटल जो है वो इसमें अंदर के शेल में प्रेजेंट है, 6s और 5d के भी अंदर है 4f। तो 4f से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये जनरली पाई डोनर लिगेंड के साथ भी कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते। ठीक है, अभी अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो जनरली ऐसे पाया जाता है कि अभी तक अपन ने देखा कि वो अच्छे से कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म नहीं करते, ठीक है, पाई डोनर लिगेंड के साथ भी वो कॉम्प्लेक्स अच्छे से फॉर्म नहीं करते। तो फिर ऐसे कौन से लिगेंड्स है, या फिर अगर लैंथेनाइड के अपन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना ही होगा तो कौन से लिगेंड को अपन को यूज़ करना होगा ताकि अच्छे से कॉम्प्लेक्स अपन फॉर्म कर सके। तो जनरली ऐसे पाया जाता है कि चिलेटिंग लिगेंड्स जो रहते हैं, नाम आपने सुना होगा, चिलेट रिंग्स फॉर्म करते हैं। सो दे जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। तो जहाँ पे रिंग्स फॉर्म होते हैं, ये तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो मेटल के साथ रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, लिगेंड्स रिंग शेप में, चाहे वो कितने भी मेंबर की रिंग रहने दो, ठीक है। तो ऐसे जो रिंग फॉर्म करने वाले जो लिगेंड्स रहते हैं वो जनरली उनके चांसेस हाई रहते हैं लैंथेनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। जैसे कि मान लो चिलेटिंग लिगेंड्स, इनके अगर एग्जांपल लिखते हैं, 2-3 एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर आपको एग्जांपल्स इनके याद रखने हैं तो आप अच्छे से कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स के एग्जांपल है, जैसे कि एसेटोन हो गया, एसेटोन, या फिर अमाइनो एसिड भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, अमाइनो एसिड, ऑक्साइन, टार्टारिक एसिड, ऐसे बहुत सारे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ ये लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। तो ये आपको कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स के नाम अगर याद रख सकते हो तो 1-2 आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जब आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे तो ये एग्जांपल्स जब लिखोगे तो आपका कुछ अलग सा इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो जो आपके
एग्जामिनर्स रहते हैं, पेपर चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि इनको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है, लेकिन इनके साथ साथ इनको जो कुछ एग्जाम्पल्स है ये भी पता है। तो एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल आप आसानी से ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे कि पाए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी अपन लिखेंगे, जैसे कि पहला सेरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे अपन और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ता है। तो आप एक दो अगर एग्जाम्पल्स भी याद रखते हो तो भी सफिशिएंट है। तो मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एलिमेंट आप लेते हो सेरियम का, ठीक है। तो सेरियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स शो करता है और वो सेरियम +4 में रहता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर सेरियम Cl6, ठीक है। सेरियम Cl6 और इसके ऊपर चार्ज रहेगा, वो रहेगा 2-। तो ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं और उसके अपन एग्जाम्पल भी आसानी से बता सकते हैं। और एक एग्जाम्पल जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में नियोडीनियम 3+ शो करता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 9 नियोडीनियम 3+। नियोडीनियम 3+ ये कॉम्प्लेक्स दिखाता है और वो कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स शो करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अगर आप नोट्स वगैरह देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सेरियम, नियोडीनियम, अलग अलग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, चाहे तो एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे आप याद रख सकते हो। और इसके ऊपर मान लो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथेनाइड्स, तो इतना सफिशिएंट है। अगर आप 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है तो इतना सफिशिएंट है, आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। द ऑकरेंस ऑफ दिस लैंथेनाइड एलिमेंट्स, तो ऑकरेंस में अपन को ये देखना है कि वो लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। क्या वो नेचर में एग्जिस्ट है, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, या फिर इनको अपन को लैब में प्रिपेयर करना है। तो ये अपन अभी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब अपन ने डेफिनेशन देखा था तो डेफिनेशन में मैंने ऐसे बताया था कि इसको पहले के ज़माने में रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता था, ठीक है। क्यों रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता था? क्योंकि ये पहले डिस्कवर अर्थ में पाए नहीं जाते थे, अर्थ में डिस्कवर नहीं किए गए थे, ठीक है। लेकिन अभी अर्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनके लैंथेनाइड्स, ये जो एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो डेफिनेशन है, वो जो टर्म थी रेयर अर्थ एलिमेंट, वो कहीं ना कहीं अभी गलत साबित हो गई है, ठीक है। तो अपने इंडिया में भी इसके बहुत सारे अमाउंट में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेरियम मोनाजाइट सैंड करके जो है वो साउथ इंडिया में त्रावणकोर करके एक प्लेस है, केरला, शायद केरला में, तो वहाँ पे ये मोनाजाइट सैंड करके वहाँ पे पाई जाती है बहुत अमाउंट में। उधर उससे अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि सेरियम हो गया, ठीक है। तो ये अपन डिटेल में देखने ही वाले हैं कि कौन से एलिमेंट कौन से मिनरल में मिलते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मिनरल का पहले नाम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में मिनरल, यानी उस मिनरल का नाम जिससे अपन को वो एलिमेंट मिलता है, ठीक है, वो एलिमेंट मिलता है। तो और कौन सा एलिमेंट मिलता है, कंपोजिशन उसका क्या रहता है, यानी कि फार्मूला कंपोजिशन, और उसमें से कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं,
ठीक है, ये एक ही बॉक्स में आएगा। और लास्ट कॉलम में अपन लिखेंगे प्लेस, जैसे कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे अपने पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपन मिनरल देखेंगे वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट और इसका कंपोजिशन जनरली पाया जाता है सेरियम फॉस्फेट के फॉर्म में। सेरियम जो लिखा, सेरियम के आसपास वाले एलिमेंट सेरियम सीरीज के, ठीक है, फॉस्फेट। और इस मिनरल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो एलिमेंट जनरली सेरियम, पहला एलिमेंट जनरली सेरियम, जो कि जिसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 50 से लेके 75% मिलता है सेरियम। ठीक है, और सेरियम के बाद अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि यट्रियम हो गया। यट्रियम का परसेंटेज भले ही कम होता है, जैसे कि मान लो 1 से लेके 4 तक इसका परसेंटेज है। और ये इतना भी याद रखते हो सफिशिएंट है। कौन से प्लेस पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मोनाजाइट सैंड करके अपने इंडिया में त्रावणकोर करके एक प्लेस है, तो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ब्राज़ील, ऐसे अलग अलग कंट्री में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यूएसए। तो सेरियम ग्रुप के अपन 2 एलिमेंट लेंगे और बाद में यट्रियम उस ग्रुप के 2 मिनरल्स लेंगे, क्योंकि सारे के सारे मिनरल्स भी याद रख नहीं पाओगे आप, लेकिन 1-2 मिनरल्स के नाम और उसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपको कहाँ मिलते हैं, उसका कंपोजिशन, इतना भी अगर सफिशिएंट नॉलेज है तो आपको आंसर लिखने में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो दूसरा जो मिनरल है वो अपन लिखेंगे सेराइट। सेराइट, और इसका कंपोजिशन क्या होता है सेराइट का? तो सेराइट का कंपोजिशन जनरली सेरियम सीरीज के एलिमेंट्स रहेंगे और H3S3। तो यह कंपोजिशन भी अगर याद आपको चांसेस कम है याद रहे, तो आप खाली ऐसे रखो याद कि सेराइट में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट सेरियम, तो 51 से लेके सेरियम इसमें पाया जाता है 51 से लेके 72% तक। ठीक है, और सेरियम के साथ साथ इसमें यट्रियम भी ऑलमोस्ट 7% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, और बाद में और 2 अपन मिनरल्स देखेंगे, और जैसे कि पहला है क्या जेनोटाइम। जेनोटाइम का मिनरल है, तो उसमें जो एलिमेंट्स इस जेनोटाइम मिनरल में जो एलिमेंट्स जनरली पाए जाते हैं वो है यट्रियम, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, इसके भी कुछ परसेंटेज पाए जाते हैं। तो इसमें यट्रियम 54 से लेके 65% तक, 55 से लेके 65% तक यट्रियम पाया जाता है। ठीक है, और ये कौन से कंट्री में कौन से प्लेस में पाए जाते हैं वो अपन देखेंगे। तो ये इधर मैं बोल गया था सेराइट जनरली पाया जाता है स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में इसके बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। और जेनोटाइम की अगर अपन बात करें तो जेनोटाइम नॉर्वे और ब्राज़ील में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। नॉर्वे और नॉर्वे के साथ ही ब्राज़ील में भी ये जेनोटाइम जो मिनरल्स है, जिसमें अपन को यट्रियम से लेके यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, ये भी कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम रहता है। और लास्ट वाला जो अपन मिनरल देखेंगे वो है
गैडोलिनाइट, तो गैडोलिनाइट में जो एलिमेंट्स है यट्रियम वो 35 से लेके 48% तक अपन को मिलते हैं। 35 से लेके 48% तक अपन को यट्रियम सीरीज के जो एलिमेंट्स है या फिर यट्रियम वो मिलते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें बेरिलियम या फिर थोरियम ये भी कुछ ट्रेसेस में पाए जाते हैं। बेरिलियम ले लो या फिर थोरियम, ये जो एलिमेंट्स है वो बहुत कम क्वांटिटी में, वेरी स्मॉल परसेंटेज, और वी कैन से इट एज इन trace. Alright, so beryllium, thorium are also present in this gadolinium. And which place these gadolinite or minerals are present? So they generally found in Norway, Sweden and USA. So Sweden, USA, so in these countries these minerals are obtained. So this was the occurrence of these lanthanides, in which place which minerals are found. Alright, so we have discussed these points in detail. मान लो अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके इंडिया में लैंथेनाइड्स तो मिलते ही नहीं, तो आप इजीली आसानी से आंसर दे सकते हो कि नहीं, हमारे इंडिया में भी लैंथेनाइड्स पाए जाते हैं। मोनासाइट सैंड के नाम से वो, ठीक है, सप्लाई होता है वर्ल्ड में पूरे, तो वो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने जो लिखे हैं 4 अलग अलग मिनरल्स, तो ये 4 अगर मिनरल्स आप लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके भी अगर याद रखो, तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है ऑकरेंस ऑफ लैंथेनाइड्स के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट आंसर, तो इतना सफिशिएंट होगा आपको आंसर देने के लिए। ठीक है, अगर बॉक्स बनाना भूल जाते हो तो मिनरल का नाम याद रखो, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वो रखो, और कंट्री का नाम। अभी देखो एक मिनरल के लिए अपन 3 कंट्री के नाम लिखे, तो उसमें से एक नाम भी अगर आपको याद रखता है तो सफिशिएंट है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द ऑकरेंस ऑफ लैंथेनाइड्स।